IMF کی شرائط پر چلیں گے تبھی بیرونی امداد ملے گی. مسائل کے حل کے لیے ساری صلاحیتیں استعمال کریں گے لیکن پھر بھی آپ کو صبر کرنا ہوگا. نگراں وزیر خزانہ شمشاد اختر نے صاف صاف بتا دیا. سینٹ کی قائمہ کمیٹی کو بریفنگ میں کہا مشکل سے خرچے پورے ہو رہے ہیں. مارکیٹ سے 23% پر قرض لینا پڑ رہا ہے. آمدن کا 70% قرض کی ادائی پر لگ رہا ہے. میڈیا سے گفتگو میں کہا بجلی کے شعبے میں کافی عرصے تک مراعات دی گئیں. یہ پالیسیاں ہم نے تو نہیں بنائیں, ہمارے آنے سے پہلے سے بنی ہوئی ہیں. کئی دہائیوں کی پالیسیوں کو ایک دن میں تبدیل نہیں کر سکتے. حکومت مخلصانہ طور پر عوام کی بہتری کے لیے کام کرے گی. عوام کو بجلی کے بلوں میں کیسے اور کتنا ریلیف دیا جائے؟ IMF نے حکومت سے تحریری پلان مانگ لیا. نگراں وزیر خزانہ شمشاد اختر نے IMF کی نمائندہ ایسٹر پیرس سے بجلی بلوں میں ریلیف کی تجاویز پیش کی. IMF نے پوچھا کہ اب بجلی بلوں میں ریلیف دینے سے ٹیکس کم ہو جائے گا. جو ٹیکس کم ہوگا اس کے لیے کسی اور مد سے رقم نکالیں گے. بجلی کے بھاری بلوں کے خلاف آج بھی کئی شہروں میں عوام سڑکوں پر. لاہور میں شہریوں کا مظاہرہ, بل جلا دیے. خواتین نے بھی بل دیکھ کر دل تھام لیے. کہتی ہیں بل بھرنے کے لیے ادھار لینا ہوگا. راجن پور میں تاجروں کا بجلی کے بل, میٹرز اور روٹی اٹھا کر احتجاج. حافظ آباد اور خوشاب میں ریلیاں. شہریوں کا بل واپس لینے کا مطالبہ. گوجرانوالہ ٹریفک پولیس کی بجلی بلوں پر شہریوں کا غصہ دیکھ کر موٹر سائیکل سواروں کا چالان نہ کر کے انہیں ریلیف دینے کی کوشش. ٹنڈولا یار میں بھی مظاہرین کا حکومت سے ٹیکس واپس لینے کا مطالبہ. نان ریکوری پر لوڈ شیڈنگ فیڈر سے نہیں PMT سے کی جائے. نیپرا کا بڑا فیصلہ. فیڈر سے بجلی بند کرنے پر بڑا علاقہ بجلی سے محروم ہو جاتا ہے, جس میں کئی لوگ پوری بلنگ کرنے والے بھی ہوتے ہیں. ان کی بجلی بند کرنا غیر ذمہ داری ہے. نیپرا نے پورا بل بھرنے پر بھی لوڈ شیڈنگ کا سامنا کرنے والے صارف کی درخواست پر فیصلہ سنا دیا. کہا کہ الیکٹرک فیڈر سے بجلی بند کرنے کی بجائے PMT سے ریموٹ پاور سسٹم کے ذریعے لوڈ شیڈنگ کر لے. نیپرا نے AT&C لاسز کی بنیاد پر لوڈ شیڈنگ کو نیپرا ایکٹ 2005 کے خلاف قرار دے دیا. امریکی انڈر سیکرٹری برائے سیاسی امور وکٹوریا نولینڈ کی وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی سے ٹیلی فون پر گفتگو. پاکستان کے قوانین اور آئین کے مطابق بروقت, آزادانہ, منصفانہ انتخابات کی اہمیت پر تبادلہ خیال. کہا امریکہ پاکستان سے شراکت داری وسیع اور مضبوط کرنے کا خواہاں ہے. دونوں رہنماؤں نے پاکستان کے معاشی استحکام, خوشحالی اور IMF سے مسلسل روابط سمیت باہمی تعلقات پر بھی بات چیت کی. الیکشن کمیشن حکام نے جنوری کے آخر یا فروری کے وسط میں الیکشن کرانے کی بات کی ہے. عوامی نیشنل پارٹی کے رہنما میاں افتخار کی الیکشن کمیشن حکام سے ملاقات کے بعد گفتگو. کہا الیکشن کمیشن حکام نے ملاقات میں یقین دہانی کرائی کہ کوشش کریں گے حلقہ بندیاں جلدی کریں جس سے الیکشن پہلے بھی ہو سکتے ہیں. الیکشن کمیشن کو کہا ہے کہ اگر 90 روز میں الیکشن نہیں کروا سکتے تو کم از کم الیکشن کی تاریخ اور شیڈیول دے دیں. آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا ٹلہ فائرنگ رینج جہلم میں فیلڈ فائر اور جنگی مشقوں کا مشاہدہ. آپریشنل مشقیں انجام دینے میں فضائیہ, آرمی ایویشن اور زمینی دستوں کی ہم آہنگی کو سراہا. فوجیوں کی جنگی مہارت اور جارحانہ جذبے کی تعریف. ISPR کے مطابق آرمی چیف کو مشقوں کے مقررہ مقاصد سے آگاہ کیا گیا. چیلنجنگ ماحول میں آپریشنل تیاریوں کا جائزہ لینا ان مشقوں کا مقصد ہے. سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا 10 ستمبر کو پاکستان پہنچنے کا امکان. سعودی ولی عہد کا ممکنہ دورہ پاکستان 4 سے 6 گھنٹوں کا ہوگا. سعودی ولی عہد پہلے مرحلے میں پاکستان اور دوسرے مرحلے میں بھارت روانہ ہوں گے. محمد بن سلمان نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سے ملاقات کریں گے. آرمی چیف سے بھی سعودی ولی عہد کی ملاقات متوقع ہے. ملاقاتوں میں پاک سعودی عرب تعلقات کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا جائے گا. سائفر کیس میں چیئرمین PTI کے جوڈیشل ریمانڈ میں 13 ستمبر تک توسیع. اسپیشل سیکرٹ ایکٹ عدالت کے جج نے اٹک جیل میں سماعت کی. چیئرمین PTI کے وکلاء نے درخواست ضمانت کے ساتھ جیل ٹرائل کے خلاف درخواست بھی دائر کر دی. 2 ستمبر کے نوٹس جاری. چیئرمین PTI نے سائفر کیس کی سماعت ڈسٹرکٹ جیل اٹک میں کرنے کا نوٹیفیکیشن اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا. ATC جج کو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت درج مقدمات کا اختیار سماعت بھی چیلنج. چیئرمین PTI کے وکیل سلمان صفدر کا کہنا ہے کہ عدالت کو بتایا کہ اس وقت کی حکومت سائفر کو ڈی کلاسیفائی کر چکی تھی. معاملے پر پروسیکیوشن کا کوئی جواز نہیں. 15 دن پہلے ہوئے جوڈیشل ریمانڈ کا نہ ملزم کو بتایا گیا نہ قانونی ٹیم کو. گرفتاری سے آگاہ نہ کرنا فیئر ٹرائل کا آرٹیکل 10A کی سنگین خلاف ورزی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ کیس میں چیئرمین PTI کی ضمانت پر رہائی کی روبکار جاری کر دی.
नेपाल के खिलाफ एशिया कप के इफ्तिताही मैच में कप्तान बाबर आजम की शानदार बैटिंग, 151 रन बना लिए। मोहम्मद रिजवान ने 44 रन बनाए। पहले बैटिंग करते हुए पाकिस्तान ने 4 विकेट्स के नुकसान पर अब तक 325 रन स्कोर कर लिए। मैच से कबल इफ्तिताही तकरीब में आइमा बेग और नेपाली गुलकारा ने आवाज़ का जादू जगाया। स्टेडियम में कौमी परचम से हम आहंग रंगों के गुब्बारे छोड़े गए। शायकीन ने खूब दाद दी। 9 मई से रूपोश पीटीआई सिंध के सदर हलीम आदिल शेख गिरफ्तार। पुलिस ने सिंध हाईकोर्ट के बाहर से हिरासत में ले लिया। हलीम आदिल शेख वारंट मांगते रहे, पुलिस ने एक ना सुनी। सिंध हाई कोर्ट ने एंटी करप्शन अदालत हैदराबाद के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल करते हुए गिरफ्तारी से रोकने और हलीम आदिल शेख को 7 दिन में मुतालिका अदालत में पेश होने का हुक्म दिया था। अदालत में हलीम आदिल शेख के वकला का कहना था कि हलीम आदिल शेख को गिरफ्तार करने से रोका जाए, जिस पर अदालत ने रिमार्क्स दिए कि जिस केस में दरख्वास्त दायर थी उसमें गिरफ्तारी से रोका है, जो इशू दरख्वास्त का हिस्सा नहीं उसमें कैसे हुक्म दे सकते हैं। गिरफ्तारी से कबल गुफ्तगू में हलीम आदिल शेख ने कहा कि पीपल्स पार्टी जाते जाते किसी और के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना चाहती थी। वो पीपल्स पार्टी के जाने के बाद अदालत से रुजू कर रहे हैं। साइफर केस में पीटीआई के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी को अदालत ने 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। एफआईए के प्रोसिक्यूटर ने शाह महमूद कुरैशी के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मोबाइल फ़ोन और साइफर की बरामदगी करना है। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने एफआईए की मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने अपनी तनख्वाह में 2 मरतबा इजाफे की मांग कर दी। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक सदर मुमलिकत ने तनख्वाह में 2 इजाफे मांग लिए, जिनमें से पहले का इतलाक 1 जुलाई 2021 जबकि दूसरे इजाफे का इतलाक 1 जुलाई 2023 से होना चाहिए। जंग और द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की खबर के मुताबिक रवा माह सदर मुमलिकत ने काबीना सेक्रेटरी को लिखे गए खत में तनख्वाह, अलाउंस और मुराद के तरमीमी एक्ट 2018 के चौथे शेड्यूल में तरमीम की ख्वाहिश का इजहार किया था। तरमीम की सूरत में 2 मराहिल में इजाफे के बाद जुलाई 2021 से सदर की तनख्वाह 10,24,325 रुपये है, जबकि जुलाई 2023 से तनख्वाह 12,29,190 रुपये हो गई है। डॉलर की कदर में मुसलसल इजाफा जारी। इंटरबैंक में आज डॉलर की कदर में 1 रुपया 40 पैसे का इजाफा हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 304 रुपये 45 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपया 50 पैसे महंगा होकर 319 रुपये 50 पैसे का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मनफी रुझान। 100 इंडेक्स 525 पॉइंट्स कमी के बाद 46,244 की सतह पर बंद हुआ। चेयरमैन पीटीआई को कभी कभी चिकन का पतला शोरबा दिया जाता है। कैद के पहले 7 दिन सिर्फ दाल रोटी दी गई, मगर उन्हें किसी तरह के खाने से कोई मसला नहीं है। कमरे की सूरत हाल वही है, वेंटिलेशन नहीं है, सिर्फ वॉशरूम की दीवार 2 फुट ऊपर की गई। चेयरमैन पीटीआई के वकील सलमान सफ्दर की गुफ्तगू वकील इफ्तिखार अहमद ने बताया कि चेयरमैन पीटीआई जेल में एडजस्ट हो चुके हैं और उन्होंने कहा है कि पूरा पाकिस्तान एक जेल बना हुआ है। बाहर की जेल की बजाय वो अंदर की जेल में रहना ज़्यादा पसंद करेंगे। जितनी किताबें उनके पास थीं वो पढ़कर ख़त्म कर चुके। उनके हौसले बुलंद हैं और वो हकीकी आज़ादी के आज़म पर कायम हैं। इससे पहले अटॉर्नी जनरल की रिपोर्ट में कहा गया था कि चेयरमैन पीटीआई को हफ्ते में 1 बार देसी घी में पका मटन और 2 बार देसी मुर्गी पका कर दी जा रही है। 9x11 के कमरे में मैट्रेस, एयर कूलर, मेज, कुर्सी और 21 इंच का टीवी मौजूद है। सियालकोट में कुछ रोज़ काबिल हामिला खातून के कत्ल का मुअम्मा सुलझ गया। पुलिस हिरासत में मुलजिमा खवातीन ने वाक़े की हौलनाक तफसीलात बताईं। कहा बच्चा हासिल करने के लिए हामिला खातून का पेट चाक करके बच्चा निकाला गया, लेकिन बच्चा भी मर गया। मुलजिमान ने खातून की लाश संदूक में छुपा दी। सीसीटीवी ने भांडा फोड़ा। पे भी चोटें लगी है, बाजों पे लगी है, पीछे सारा जिस्म पे लगी है, काले निशान पड़े हैं। घर पर काम करने वाली 8 साला बच्ची पर वहशियाना तशद्दुद। रावलपिंडी से एक और अफसोसनाक वाकया सामने आ गया। कोहनी की 2 हड्डियां तोड़ दी, सर के बाल काटे, शदीद तशद्दुद किया। वालिदैन का इल्ज़ाम। कहा कि पड़ोसन के कहने पर उसकी बेटी के बच्चों की निगहदाश्त के लिए बच्ची को 6,000 तनख्वाह पर रावलपिंडी भेजा। बच्चों का खाना खत्म होने पर बच्ची पर तशद्दुद किया गया। बच्ची जान बचाकर खानपुर पहुंची। रवात पुलिस ने मुतासरा बच्ची के वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। तफ्तीश जारी।
कराची की शारा फैसल पर गुज़िश्ता रोज लोगों की दौड़ें लगवाने वाला शेर कराची चिड़िया घर मुंतकिल। शेर के मुबैना मालिक, गाड़ी के ड्राइवर समेत 5 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। डिप्टी कंजर्वेटर महकमा जंगली हयात का कहना है कि अदालती फैसले के बाद शेर की मुस्तकिल रिहाइश का फैसला किया जाएगा। 2 साल से किसी को भी शेर रखने का परमिट जारी नहीं किया। कराची में 20 से ज़ायद शेर रखने के परमिट लोगों के पास मौजूद हैं। हथनी मधुबाला की सफारी पार्क मुंतकिली के लिए खुसूसी कंटेनर कराची चिड़िया घर पहुंचा दिया गया। इस्लामाबाद में तैयार कंटेनर 15 फुट लंबा, 5 फुट चौड़ा है। हवा के लिए खुसूसी खिड़कियां नस्ब हैं। 25 से 30 लाख की लागत से तैयार किया गया मधुबाला को कंटेनर से मानूस करने के लिए 4 पॉज का मखसूस ट्रेनर बैरून मुल्क से आकर ट्रेनिंग देगा। तरबियत के बाद सितंबर के आखिर तक मधुबाला की सफारी पार्क मुंतकिली का इम्कान है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ईमान मजारी एडवोकेट के खिलाफ मुल्क भर में दर्ज मुकदमात की तफसीलात तलब कर ली। आइंदा समाअत तक ईमान मजारी को गिरफ्तार करके इस्लामाबाद से बाहर ले जाने से रोक दिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि ईमान मजारी के खिलाफ 20 अगस्त के बाद का कोई वाक़या है तो उसमें गिरफ्तार ना किया जाए। ईमान मजारी उस अदालत में मौजूद थीं तो उन्होंने कहा था कि अपनी माँ की ज़ुबान कंट्रोल करें। ईमान मजारी ने यकीन दहानी कराई, फिर उन्होंने खुद अपनी ज़ुबान कंट्रोल नहीं की। 2023 आइन और अदलिया पर अमल दरामद के लिहाज से तारीख तरीन साल है। कौम को बिल जलाते हुए सवाल ज़रूर करना चाहिए कि पाकिस्तान की तरक्की के सफ़र को किसने जलाया, किसको तकलीफ थी जब नवाज शरीफ ने IMF को हमेशा के लिए खैर बात कह दिया। कौम मौजूदा सूरत हाल के ज़िम्मेदार तमाम किरदारों को कटहरे में खड़ा करे। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगजेब की तनकीद, कहा पाकिस्तान IMF को खैर बात कहने के बाद IMF गया, मुआहदे की खिलाफ वर्जी करके मुल्क को डिफ़ॉल्ट के किनारे तक पहुँचाया गया। मुआशी तबाही हुई, डॉलर आज इस कीमत पर पहुँचा, महंगाई ने गरीबों का जीना हराम कर दिया है। पीपल्स पार्टी के सेनेटर शेरी रहमान ने बिजली के इजाफी बिल्स का मामला सेनेट की कायमा कमेटी में उठा दिया। कहा हुकूमत औसतन बिजली के बिल पर 10 मुख्तलिफ टैक्स और ड्यूटीज वसूल कर रही है। ये खित्ते में किसी भी यूटिलिटी बिल पर सबसे ज्यादा टैक्सेस हैं। लोगों पर नहीं, अशराफिया पर टैक्स का बोझ डाला जाए। और कौन बनेगा एशिया में क्रिकेट का नया हुक्मरान? पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल या अफगानिस्तान? जियो न्यूज़ ला रहा है सनसनीखेज मुकाबलों पर तज्जियों और तबसरों से सजे प्रोग्राम्स। होंगे हमारे साथ मर्दे बहरान और साबिक कप्तान मोइन खान, ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक और क्रिकेट के सिकंदर बख्त। देखिए दिलचस्प तबसरे और तज्जिए रोजाना सिर्फ जियो न्यूज़ पर।